Hello everyone and welcome to today's video, which is again a very important video related to HR opening. So आज के सेशन में एक हम बहुत अच्छी ओपनिंग स्पेशली दोज हु आर बीबीए एमबीए या प्रोफेशनल हैं उनके लिए एक नंबर ऑफ ओपनिंग्स आई हैं एचपी सीएल में, हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड। सो इस सेशन में हम ओपनिंग्स क्या हैं, कौन एलिजिबल है, कैसे अप्लाई करेंगे, ये सारी चीज़ें डिस्कस करेंगे। ठीक है, ओवरऑल ओपनिंग्स के बारे में डिस्कस करने से पहले I am Lakshmi Kushwaha and I am your educator and mentor for industrial relations and labor law. So a small introduction after a long time about me. So I am research scholar in HR. I am pursuing my PhD from Gautam Buddha University. I have qualified the PhD entrance of the same university with the rank 1. I am MBA specialized in HR and finance. I have qualified NTA UGC NET with 98.74 percentile. Other than this, I hold 21 certifications, which include my certification from International Labour Organization, which is a certification of International Labour Standards. Then I have a certification again, one more from ILO, then SHRM, then CIPD, then a complete NASBA. So I have 21 certifications specialized into HR. Other than this, I have 10 years of working experience, out of which 5 years is of my academic experience. Before that, I have been working with Times of India, an academy. So that is my previous working experience. Currently, as you all know, I have my own platform, Padai Exam Prep, and you can follow me on my YouTube channel as well. As in track record, there have been my students, those who have qualified the exams, PSUs, assistant professor, or assistant labor commissioner, and labor welfare, and so on. So till now I have more than 5 students who have secured all India rank in JRF, all India rank in labor inspector. So this is specifically those who know about DSSB exam. So there has been all India rank 1, then all India rank in PhD entrance. So one of my students have secured all India rank 5 at Punjab University. Then there has been 30 plus students, those who have qualified assistant professor in UGC NET and other PhD qualifications also. There has been 10 plus PSU selections, means their people or the students have been placed at CIL, NP, NTPC and other PSUs, right? Other than this, I have a record of giving a webinars. So one of my webinar, two very prominent webinar is Punjab University, where I have given the topic which was related to HR for MBA students, and again at the JD College of Engineering. This was specifically a webinar conducted for the teachers. So how to conduct the online webinars, online teaching, how to maintain a rapport with the students and so on. So this is all about me. So now today, कमिंग टू द मेन टॉपिक, आज जो हम डिस्कस करने वाले हैं, दैट इफ यू आर पर्सन हु इज डूइंग हु हैव डन एमबीए इन एचआर और बीए इन एचआर एंड यू आर लुकिंग फॉरवर्ड टू वर्क विद एन पीएसयू, देन दिस एचपीसीएल इज अ गुड अपॉर्चुनिटी. अब यहाँ पे जो वैकेंसीज हैं ओवरऑल, इसको हम थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं. जूनियर एग्जीक्यूटिव एचआर 5 वैकेंसीज हैं. फ्रेशर्स, तो बीबीए भी किया है आपने, स्पेशलाइजेशन बीबीए हॉर्न्स, BMS विथ HR स्पेशलाइजेशन, तो आप इस पोजीशन के लिए अप्लाई कर सकते हैं. ऑफिसर HR 6 पोजीशंस हैं. एज लिमिट है, तो अगर आपका MBA है HR में या पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री है HR में, पर्सनल मैनेजमेंट में, IR में, हम इसको डिटेल में देखेंगे. ये भी फ्रेशर्स के लिए है. अब 3 पोजीशंस हैं, ये 3 मतलब 3 पर्टिकुलरली ये टाइटल्स हैं, जो टोटल 5 पोजीशंस खाली यहाँ पे, असिस्टेंट मैनेजर HR, मैनेजर HR, सीनियर मैनेजर. तो ये बेसिकली एक्सपीरियंस रिक्वायर्ड है आपका 6 ईयर, 9 ईयर्स एंड 12 ईयर. तो अगर आप असिस्टेंट मैनेजर के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो मिनिमम 6 ईयर्स का एक्सपीरियंस होना चाहिए, आपका डिग्री कंप्लीट होना चाहिए. 9 ईयर्स अगर आप मैनेजर HR के लिए अप्लाई कर रहे हैं, 12 ईयर्स अगर आप सीनियर मैनेजर के लिए अप्लाई कर रहे हैं. ठीक है. देन HR लीगल ऑफिसर, ये ओपनिंग बेसिकली उन स्टूडेंट्स के लिए है जो LLB कर चुके हैं या इंटीग्रेटेड लॉ है. ठीक है. 1 ईयर लॉ या लीगल एक्सपीरियंस यहाँ पे प्रिफर्ड है. ठीक है. तो हम सीधा यहाँ पे आते हैं, जो कि ओपनिंग है, ये ऑफिशियल वेबसाइट है
जहां से आप डिटेल्ड एडवर्टीजमेंट, करियर वाले सेक्शन में जाएंगे आप, ठीक है, वहां जॉब ओपनिंग्स में जाएंगे, करंट ओपनिंग्स में आप अगर चेक करेंगे तो आपको डिटेल्ड एडवर्टीजमेंट यहां से मिल जाएगा। अगर आपको अप्लाई करना है तो ये क्लिक हियर वाला ऑप्शन है, यहाँ पे आप अप्लाई कर सकते हैं। तो अगर मैं अभी डिटेल्ड एक जो एडवर्टीजमेंट है उसके ऊपर मैं आऊँ तो 105 इसके अंदर पेजेस हैं, ऑलमोस्ट सारी डिटेल्स इसके अंदर में दी हुई है, एवरीथिंग इज गिवन, कितनी ओपनिंग है, किस तरीके से ओपनिंग है, ठीक है। तो अब बेसिकली हम बहुत सारी चीज़ें यहाँ नहीं पढ़ पाएंगे, तो मैंने इसको शॉर्ट करने के लिए यहाँ पे कुछ चीज़ें जो आपके लिए इंपॉर्टेंट है वो यहाँ लिख दी हैं। तो एप्लीकेशन हैज स्टार्टेड 25 फरवरी से, लास्ट डेट जो है अप्लाई करने की है वो 25 मार्च है, एंड लास्ट फी पेमेंट इज 25 मार्च। एग्जाम जो सिलेक्शन प्रोसेस है वो सीबीटी है, पहले आपका कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा, फिर इंटरव्यू होगा। तो टेंटेटिव डेट इन्होंने 3 मई 2026 दी है, जो कि हाँ चेंज हो सकती है, आगे बढ़ सकती है, ये टोटली HPCL के ऊपर है, ठीक है। लेकिन जो अभी टेंटेटिव डेट हमको अभी लेके चलना है वो है 3 मई 2026। तो अभी फेब है, तो मार्च अप्रैल 2 महीने आपके पास में प्रिपरेशन करने के लिए, राइट। तो ये बेसिक डिटेल है। अब थोड़ा सा हम क्वालिफिकेशन को डिटेल में समझ लेते हैं। तो अगर आप जूनियर एग्जीक्यूटिव HR के लिए अप्लाई कर रहे हो, दिस इज द सैलरी स्केल, पे स्केल, 5 ओपनिंग है, ये एज क्राइटेरिया है, 3 इयर्स फुल टाइम रेगुलर, जो आप BBA किया है आपने, ठीक है, उसमें HR आपका बेसिक स्पेशलाइजेशन होना चाहिए, तो 3 ईयर का होगा, तो आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। 5 ओपनिंग है। HR ऑफिसर है, ये आपका पे स्केल है, 6 ओपनिंग्स है, 27 इज द एज लिमिट, और हाँ आपको रिलैक्सेशन भी मिलेगा जिस कैटेगरी में आप बिलोंग करते हैं। आप डिटेल्ड एडवर्टीजमेंट पढ़ सकते हैं, हम उसको यहाँ पे डिस्कस नहीं करेंगे बिकॉज दैट इज नोन, आई बिलीव बहुत सारी ओपनिंग्स हम देख चुके हैं। यहाँ है फुल 2 ईयर फुल टाइम पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री इक्विवेलेंट इन HR, पर्सनल मैनेजमेंट, इंडस्ट्रियल रिलेशन, साइकोलॉजी। इसका सिंपल सा मतलब है, अगर आपने MBA किया है या अगर पोस्ट ग्रेजुएशन है जो इक्विवेलेंट टू MBA है, या कोई भी एक ऐसा क्वालिफिकेशन जहां आपकी HR एज एन स्पेशलाइजेशन है। तो देखो साइकोलॉजी भी है, तो साइकोलॉजी में भी HR पढ़ते हैं, ठीक है। तो अगर ऐसा, जैसे सोशल वेलफेयर की बात करते हैं तो सोशल वेलफेयर MSW, ठीक है, यहाँ पे भी HR स्पेशलाइजेशन होता है, तो ये स्टूडेंट्स भी अप्लाई कर सकते हैं। सोशल वेलफेयर बोल रही हूँ, सोशल वर्क नहीं बोल रही हूँ, ठीक है। नेक्स्ट पे आते हैं असिस्टेंट मैनेजर, सीनियर मैनेजर या मैनेजर HR, 5 ओपनिंग है टोटल। 33 इन असिस्टेंट मैनेजर की हाईएस्ट एज है, 36 मैनेजर के लिए है, और 39 सीनियर मैनेजर। अगेन यहाँ पे भी आपको रिलैक्सेशन मिलेगा। 6 ईयर्स, 9 ईयर्स, 12 ईयर्स का एक्सपीरियंस रिक्वायर्ड है, आपकी डिग्री पूरी होनी चाहिए। अगेन सेम चीजें हैं, HR क्वालिफिकेशन स्पेशलाइजेशन इंपॉर्टेंट है। लीगल ऑफिसर के लिए 2 पोजीशन है, 26 इज द हाईएस्ट एज लिमिट, 3 इयर्स का फुल टाइम लॉ का कोर्स, या 5 ईयर आफ्टर द 12th जो इंटीग्रेटेड होता है, मिनिमम 1 ईयर का लीगल एक्सपीरियंस होना चाहिए, ठीक है। तो ये तो हो गया बेसिक चीज। आप अप्लाई कैसे करेंगे, लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दे दूंगी, वेबसाइट पे आप जाके क्लिक करेंगे, वहां पे अप्लाई का आपको लिंक मिलता है, ठीक है। यहाँ पे जाके आप अप्लाई कर सकते हैं, डिटेल पढ़ेंगे, डॉक्यूमेंट्स रेडी रखेंगे, और यहाँ पे अप्लाई कर देंगे। जाके आप क्लिक करेंगे तो आपको एक पेज ओपन होगा जहां से आप अप्लाई कर सकते हैं। अब जो मोस्ट इंपॉर्टेंटली मैं आपको यहाँ पे डिस्कस करना चाह रही हूँ कि अगर कोई HR ऑफिसर, मतलब फ्रेशर्स, जूनियर HR एग्जीक्यूटिव या सीनियर पोजीशन के लिए प्रिपेयर कर रहा है, या HR ऑफिसर के लिए प्रिपेयर कर रहा है, एंड दे आर लुकिंग फॉरवर्ड फॉर द कोर्स, सो आई एम प्रोवाइडिंग अ कंप्लीट कोर्स फॉर दिस पर्टिकुलर सब्जेक्ट HR के लिए, ठीक है। यहाँ पे आपका जनरल एबिलिटी वगैरह भी होता है, लेकिन मेन कोर आपको ये पढ़ना पड़ता है, मैक्सिमम पोर्शन यहाँ से क्वेश्चंस आते हैं। तो अब ये कोर्स क्या है, देखो ये कंप्लीट कोर्स होगा जहां पे आपको रिकॉर्डेड सेशंस मिलेगी। रिकॉर्डेड क्यों कह रही हूँ, क्योंकि ये 2 महीने में आपको पूरा करना है। तो लाइव सेशंस हमारी जो होंगी वो MCQs की होंगी। जब आप ये चीजें पढ़ लोगे, हम MCQs स्टार्टिंग फर्स्ट वीक ऑफ मार्च से शुरू कर देंगे। मॉक टेस्ट होंगे जहां से 8 से लेके 10 स्पेशली इसी में, ठीक है, HR का ही मॉक टेस्ट आपको मिलेगा। जो टॉपिक्स इसके अंदर कवर होंगे सिलेबस से रिलेटेड है, सिलेबस अभी हम डिस्कस करेंगे। तो उसके अंदर बेसिकली लेबर लॉस, इंडस्ट्रियल रिलेशन, HRM, OB, कंपनसेशन, परफॉर्मेंस मैनेजमेंट सिस्टम, ये सारी चीजें कवर होती हैं। थोड़ा सा UGC नेट के सिलेबस से थोड़ा सा अलग है, लेकिन ऑलमोस्ट सेम है।
बेसिकली व्हाई यू शुड गो फॉर दिस कोर्स, तो ये मैं बहुत पहले से भी कहते आ रही हूँ कि जो कंटेंट मैं आपको प्रोवाइड करती हूँ वो कंटेंट मोर देन इनफ है, उसके बाहर क्वेश्चंस नहीं आते हैं, सारी चीजें कवर होती हैं। तो अगर आपको कोई वैलिड कंटेंट चाहिए, आपको ऐसा कंटेंट चाहिए जो जिसे पढ़ने के बाद आपको कुछ और रेफर करने की जरूरत नहीं है, तो आप ये कोर्स ले सकते हैं, एनरोल कर सकते हैं। ठीक है, इसके लिमिटेड सीट इन द सेंस जो प्राइस पे अभी अवेलेबल है वो लिमिटेड टाइम के लिए है और केवल लिमिटेड स्टूडेंट्स के लिए, उसके बाद में देयर वुड बी हाइक इन दी प्राइस। ठीक है, सो नाउ 3 ऑप्शंस हैं यहाँ पे। तो अगर आप पीएसयूज के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, यानी केवल एचपीसीएल नहीं तो मॉइल का भी एग्जाम है जो होने वाला है, और भी पीएसयूज हैं जो आने वाले टाइम पे एग्जाम कंडक्ट करने वाले हैं, और साथ ही साथ यूजीसी नेट के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, यू कैन गो फॉर दिस कोर्स। ठीक है, यहाँ पे हम पूरा यूजीसी नेट का सिलेबस कवर करते हैं, ये आपका पूरा पीएसयूज के लिए भी हेल्पफुल होता है। इस कोर्स के अलावा फिर आपको कुछ और लेने की जरूरत नहीं है। ठीक है, 6 months वैलिडिटी, वी आर डूइंग लाइव क्लासेस ऑल्सो और रिकॉर्डेड क्लासेस ऑल्सो। ठीक है, ऑलमोस्ट हम यूजीसी नेट जून के लिए जो प्रिपेयर कर रहे हैं 80% सिलेबस कवर कर दिया है। अब हम पीवाईक्यूज और एमसीक्यूज शुरू करने वाले हैं। इसके अलावा ये पर्टिकुलरली एचपीसीएल के लिए द प्राइजेस दिस, एंड इसकी वैलिडिटी आपके एग्जाम, जब तक आपकी एग्जाम नहीं होती है ये कोर्स की वैलिडिटी आपको मिलेगी। कंप्लीट रिकॉर्डेड सेशन मिलेंगे पूरे सिलेबस के लिए, सिलेबस हम आगे डिस्कस करते हैं। टॉपिक वाइज जो एमसीक्यूज क्लासेस होंगी वो लाइव सेशंस होंगी। ठीक है, फुल लेंथ मॉक टेस्ट आपको दिए जाएंगे स्पेशली प्रोफेशनल के लिए, सब्जेक्ट के लिए, जो कि 8 to 10 मॉक टेस्ट आपको प्रोवाइड करेंगे। और यस ऑफ कोर्स ये सब कुछ एग्जाम ओरिएंटेड है, एमसीक्यूज आपके एग्जाम ओरिएंटेड ही रहेंगे, एग्जाम को ही टारगेट करके बनाए जाएंगे। अगर कोई और केवल एमसीक्यू या मॉक का बैच लेना चाहता है उनके लिए भी अलग से अवेलेबल है। तो ये 3 चीजें हैं जो आप बेसिकली एनरोल कर सकते हैं। अब एनरोल कैसे करना है, तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आई विल गिव यू द लिंक ऑफ द ऐप। ठीक है, आपको एप्लीकेशन एचआर क्लासेस के नाम से है, या आप पढ़ाई एग्जाम प्रेप भी वही सेम है, पढ़ाई एग्जाम प्रेप भी सर्च करेंगे या एचआर क्लासेस बाय लक्ष्मी कुशवाहा सर्च करेंगे तो भी आपको मिल जाएगा। मैं लिंक डाल दूंगी, डाउनलोड करेंगे, वहां पे आप मैसेज करेंगे, फिर आपको डिटेल्स दी जाएगी एंड यू कैन ज्वाइन दी टेलीग्राम ग्रुप, जो कॉमन टेलीग्राम ग्रुप है उसका भी लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी। ठीक है, वंस यू मेक अ मैसेज ऑन द ऐप यू वुड बी गिवन अ डिटेल कि आपको किस तरीके से एनरोल करना है, क्या फॉर्म भरने हैं, और उसके बाद में एक टारगेटेड ग्रुप है जहां आपको ऐड ऑन किया जाएगा, वहीं पे सारी डिटेल्स मिलेंगी आपको। ठीक है, तो अब हम थोड़ा सा सिलेबस डिस्कस कर लेते हैं उन स्टूडेंट्स के लिए, उन स्टूडेंट्स के लिए जो बेसिकली अपने आप स्टडी करना चाहते हैं। ठीक है, एक ऑफिशियल सिलेबस की अगर हम बात करें, देखिए ये नवंबर का 2025 का सिलेबस है जब ये एग्जाम हुआ था, तो सिलेबस में ज़्यादा बदलाव नहीं होंगे। अभी जो ओपनिंग आई है उसके लिए जो सिलेबस होगा वो अपडेटेड होगा वेबसाइट पे, आप तभी भी चेक कर सकते हैं। बट सिंस आपको पढ़ाई शुरू करनी है तो ये एक सिलेबस है जो नवंबर 2025 में एचपीसीएल ने डिक्लेयर किया था या अपने वेबसाइट पे डाला हुआ था। तो यहाँ पे आपका मैन पावर प्लानिंग, वर्कफोर्स प्लानिंग है। ठीक है, ये सब कुछ जॉब एनालिसिस से रिलेटेड है, एचआर का पार्ट है। रिक्रूटमेंट एंड सिलेक्शन फिर से ये एचआरएम का पार्ट है। परफॉर्मेंस मैनेजमेंट ये एचआर का पार्ट है। ये सारी चीजें हम सिलेबस में हमारे इस कोर्स में कंप्लीट करेंगे। कैपेबिलिटी बिल्डिंग इज बेसिकली ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट से रिलेटेड है, जो एचआरडी जो हम बोलते हैं वो चीज है। कंपनसेशन मैनेजमेंट अगेन ये आपका एचआर का पार्ट है। ठीक है, इंडस्ट्रियल रिलेशन जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है हर पीएसयू एग्जाम के लिए, जहां आप ट्रेड यूनियन को भी पढ़ेंगे। ठीक है, ट्रेड यूनियन मूवमेंट, ट्रेड यूनियन इवोल्यूशन, सारी चीजें। लेबर लॉस जो यहाँ पे लिमिटेड दी गई हैं, और आप दे सकते हो यहाँ पे स्पेसिफिकली मेंशन किया गया है कोड्स ऑफ वेजेस। ठीक है, तो थोड़ा बहुत हम कोड्स को भी पढ़ेंगे, ये सारी चीजें यहाँ पे अवेलेबल हैं। ये जो भी कोर्स होगा ये आपका प्रस्पेक्टिव एग्जाम ओरिएंटेड ही होगा, इसी एग्जाम के लिए स्पेशली बनाया गया है। ठीक है, ऑर्गेनाइजेशनल डेवलपमेंट ये ओबी का पार्ट है, इसको आप पढ़ सकते हैं। एचआर ऑडिट वगैरह भी है तो एचआरडी का पार्ट है। सीएसआर कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, एचआरआईएस जो एचआरडी का पार्ट है। ठीक है, अब यहाँ पे लिखा भी है सिलेबस टॉपिक्स मेंशन आर इंडिकेटिव इन नेचर, कैंडिडेट्स आर एक्सपेक्टेड टू पॉजेस सिग्निफिकेंट प्रोफिशिएंसी प्रिटेनिंग। तो इसका मतलब सिंपल सा है कि इसके अलावा जो यहाँ पे टॉपिक्स मेंशन नहीं है
आपको होलिस्टिक नेचर में चीज़ों को पढ़ना है, समझना है और सिलेबस को कवर करना है। ठीक है, क्वेश्चंस एमसीक्यूज बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं जो कि हम हमारे सीरीज में कवर करेंगे। तो जो भी स्टूडेंट्स एनरोल करना चाहते हैं, दे आर मोस्ट वेलकम, दे कैन एनरोल फॉर दिस सेशन। यू हैव टू मैसेज ऑन द ऐप, डाउनलोड द ऐप, join the telegram group, and you can enroll for the class. ठीक है, so that was the session. Thank you so much.